when you actually come out of college and then you realize that, oh, instead of getting a good placement, I have a huge crisis situation in front of me. How did you face that? Again, I would take my father's name. He always says that if there is a problem, there will be a set of solutions. Correct. So you need So to identify. can you first tell me, where did this idea of holding an educational position came to your mind, especially after having such a huge experience of corporate? यहाँ corporate talking about developing AI, यहाँ पर education group is talking about कि AI कैसे पढ़ाया जाए. कि 16 साल से इंडस्ट्री में रहने के बाद अगर आप आज इतने रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन को हेड कर रहे हैं, तो या तो कोई बहुत अच्छे टीचर ने आपको इम्पैक्ट किया है सर, या आपने खुद कभी सोचा होगा कि मुझे ऐसा कुछ करना है, तो वो क्या था? चाहे a student coming from a BBA background, pharmacy background, nursing, they should know the basic of cyber, AI and data. Somebody who's scoring good percentage doesn't mean that he's open up with a lots of career path. But if somebody is confident, if he is vocal, if he is able to communicate, express himself right way, he can get into a lots of career path, lots of job roles. हो सकता है बहुत लोग नाराज हो ये चीज सुन के, right? But my philosophy, college is a playground where you should learn, you experience a thing, because यहाँ आप जितना experience करोगे, यहाँ जितने आप fail होगे and get success, you will work better in the corporate. That's right. Namaste and welcome to yet another and a fresh episode of Baat Career Ki with my mentor, a podcast series where we try to bring honest conversations about education, careers, leadership, and the journeys that actually shape the next generation of our country. Baat Career Ki is dedicated to our students who we really love, and we want them to make informed career choices about how they approach their life so that they are more happy and successful in future. In this context, we try to bring people from various industries, various sectors, who have done wonderfully well in their own ways and are impacting and contributing to the entire educational and employment ecosystem of our country. Today, I'm proud to introduce you someone who is not just somebody who has contributed purely in the educational space. We have someone who has contributed and has seen how corporates also work. So, without further delay, I would like to introduce the Honorable Executive Director of the reputed Sherwood Education Society of Lucknow. I have with me Mr. Swakshar Karmakarji. So, thank you Thank you. so much Thank you. Thank you. for being here and sparing time from your busy schedule. It really means a lot. Thank you. It's our pleasure, Mr. Anup, to be with you over here for this important occasion that you are following up. Perfect, sir. Thank you. So, normally, when people talk about holding positions like an executive director of an educational institution or a group of institutions which is not just into higher education, which is into schools as well, Correct. with so much of responsibility and so much of day to day working to manage and to lead all the stakeholders in your institution, can you first tell me, where did this idea of holding an educational position came to your mind, especially after having such a huge experience of corporate? It's very interesting thing that so I have almost 16 plus years of corporate experience, right? Where I do hire lots of fresher. I used to give lots of training to the freshers, experienced people. Then sometimes thought ki if I doing here where I'm taking the student for the further growth, further career, why not let's move into other side of the table. It's like 6 months back, 7 months back, I was sitting with my father, and my father said, "You have done enough to hire people. Why not you just train the people who are actually building the future?" True, very true. Right. So then I thought, "Okay, let's look for an opportunity where I should share my experience and make the future builders ready for the job, because nowadays the jobs are it's not like the way we were into the Yes. getting the job. Now Yes. we talk about more skills, Hmm. more leadership quality, Very more true. communication thing. Mhm. So that's why I chose. I thought, okay, let's get into other side of the table. Hmm. Let's make future, Hmm. build future rather than putting them into a future career. Hmm. So I would say thanks to our chairman, Hmm. engineer K. Bilal sir, who give me this opportunity to handle the Sherwood Group Hmm. education Hmm. baton basically. I must say. Absolutely. So absolutely is wonderful, and I'm sure the kind of feedback that we have got is fantastic. The way you are spearheading the group. So, if you could tell us something about your
education, about where were you born, where were you brought up, your schooling, higher education, and then what actually were the key areas or the key milestones that you would like to recall at this point? Great. So I think it's very interesting. So like everybody start with like I'm born and brought up in a very middle class family, but Hmm, my father was in a government sector, in a hmm, hmm, central government sector. So I hmm, born in Durgapur, is a very small town in hmm. West Bengal. Yes. Then brought up in UP, a different part of the UP, like Hmm. Dadri, Ghaziabad. Yeah. Sometime we are in Delhi. Yeah. So my whole schooling, so majorly if I talk about my whole schooling, Hmm. I've done from Dadri, the school called DAV Public School, very Hmm, hmm, small hmm, school that situated within a township of a hmm, like family of 4,000, 3,000 people over hmm, there. hmm, Then once I done my schooling, I went for my engineering like you. I've done my hmm. computer science engineering from Bundelkhand, Right. and though in when I passed out my engineering in way back 2008, Hmm. there was a crisis of IT job, right? Hmm. So then I discussed with my father Hmm. ki why not let's Hmm. do some further education, and I was interested to have some management skills as well, right? Hmm. So then I went for my PGDM. I've Hmm. done my PGDM from ILM Greater Noida. Okay. So I've done my PGDM. Then after that I got my Hmm. PPO and I put my steps in a corporate sector, Hmm. and it was like as I said earlier, there's 16 plus years Hmm. I was been into corporate, Hmm. Hmm. handling different role that is into Hmm. typically sales, channel Right. sales, Hmm. institutional sales. Hmm. I've been to lots of countries. I Hmm. talk to lots of people, selling the products, giving services. Yeah, Sir, absolutely. You mentioned about a very interesting fact about the subprime crisis, the Lehman Brothers, yeah, um, absolutely. the crisis, and when you actually come out of college and then you realize that, oh, instead of getting a good placement, I have a huge crisis situation in Yeah. front of me. How did you face that, sir? Uh, I must say ki yes. That time again, thinking about this. So here I like to add one thing. So when the crisis come or any problem come, Hmm. as a human being, a humanity, you'll always think about the problem. Hmm. We never think about the solution, because if Hmm. there is a problem, there will be a solution, and Solution. that is the one saying. Again, I would take my father's name. He always says that Hmm. if there is a problem, there will be a set of Correct. solution. Correct. So you need So to true. identify. So true. So when I pass out, I just take my graduation example. When I Hmm. pass out, we just gone through the Hmm. two 2YK 2000 Hmm. K crisis, Yeah, yeah, right? yeah, yeah, exactly. And then I thought ki now Hmm. whole IT thing shifted with Hmm. the management. Now Hmm. at that point of time, Hmm. companies were hiring technocrats, Hmm. not only the engineers. They Correct. bring the IT with management skills. So Yes. I thought let's get into Hmm. that thing Hmm. and get more problem solving skill into it, where you Yeah. can help people in a technology skills as Yeah. well as the company to develop their own business Hmm. or finances. बट सर कहीं न कहीं लगता है कि कुछ एक एकेडमिशियन का या एक एजुकेशनिस्ट बनने का कुछ इंटरेस्ट तो कहीं न कहीं ज़रूर रहा होगा सर। Absolutely, क्योंकि absolutely. 16 साल सर इंडस्ट्री में रहने के बाद अगर आप आज इतने रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन को हेड कर रहे हैं, तो या तो कोई बहुत अच्छे टीचर ने आपको इम्पैक्ट किया है सर, या आपने खुद कभी सोचा होगा कि मुझे ऐसा कुछ करना है, तो वो क्या था सर? एब्सोल्युटली, मतलब आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे इम्पैक्ट ज़रूर किया, बट इट्स नॉट टीचर, इट्स नॉट एनी सोसाइटी हुँ, थिंग, इट्स द स्टूडेंट्स, द हुँ, चिल्ड्रन, हुँ, राइट? हुँ, When I see them, their happy faces, or seeing them to achieve something and get happy about it, या तब I get a motivation over वेरी there. नाइस। Because if you, so that point of time I हुँ, thought, हुँ, okay, let's make them more happy, हुँ, make them good leader. हुँ, Because right now I think as a country we हुँ, need good leader who can take it up further, right? यस। So तब मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, अब मैंने कॉर्पोरेट में बहुत सारे बच्चे देख लिए जो हुँ, आते हैं, बात करते हैं, हुँ, they talk about their dreams, हुँ, why they want to get into company, what हुँ, they want to do, हुँ, but still there is a gap. या, And still we talk about there's a huge gap between skilled people and organization they're hiring, या, right? So that point of time I thought ki yaar, क्यों ना I put my experience into the other side या, of the table, या, and I can at least contribute 1%, 2% into growth of India, या। where I can produce skilled people who are like to be leaders for future. एब्सोल्युटली सो आई थिंक एक रिपोर्ट भी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, और माय मेंटोर भी अपने कई सेमिनार्स में उसके बारे में बात करता है
which exactly talks about the bridge which many people call employability. Absolutely. So it's not just about employment, it's about your ability to get employed. Correct. So सर, जब आप इतने एक्सपीरियंस के साथ एक इंस्टीट्यूशन को हेड करने आते हैं, तो आपके अंदर कई सारी उमंगें, कई सारे ऐसे थॉट्स होते हैं कि ऐसा-ऐसा इंडस्ट्री में आपने खुद होते हुए देखा है और आपने देखा है कि क्या एक्चुअली वो क्या चीज़ है जो काम कर रही है। बट कुछ जो एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल शेरवुड है सर, तो उनके अपने कुछ प्री कंसीव्ड नोशंस होंगे एब्सोल्युटली। कि ऐसा ही होता है, या कुछ Absolutely. टीचर्स होंगे या कुछ और लोग होंगे जो शायद आपकी उस सोच से उतना रेजोनेट नहीं कर रहे हैं। Absolutely. तो आपको कुछ ऐसा फ़ील कभी हुआ सर, और आप उसको कैसे टैकल करते हैं? Absolutely. मतलब it's almost now 5 to 6 months I have with Sherwood Education Group, and Anup, you're absolutely right. कि when you coming from a corporate to a academic, there is a huge shift, यस। right? जहाँ corporate talking about developing AI, यहाँ पर education group is talking about कि AI कैसे पढ़ाया जाए, right? So there's a huge difference, and in fact here people are identify कि AI क्या होता है and कैसे किया जा सकता है, but I think it's gradually, slowly, I'm trying to create that channel, create the way where both a education institute and a corporate talks in the same language. So after I getting into this organization, we tried to sign up with few of the organization जो AI की training दे सकते हैं. So because why I'm talking about AI or cyber or data, these are the need of the hour. चाहे a student coming from a BBA background, pharmacy background, nursing, they should know the basic of cyber, AI and data. Because वो किसी भी चीज की बात करो उसमें डेटा लिंक रहता है, डेटा लिंक होगा तो आपका साइबर थ्रेट्स है, तो पीपल शुड अवेयर अबाउट साइबर हैक्स एंड साइबर थ्रेट्स, एंड अगर ये दोनों है तो देन आपका एआई उसमें इन्वॉल्व है. सो मेरी कोशिश ये है कि एटलीस्ट द स्टूडेंट, इनफैक्ट टीचर्स, सो इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि when we talk about skilling of the student, we always forget about skilling of the main pillar of an institute. हम कभी भी टीचर की स्किलिंग की बात नहीं करते हैं. हम कहते हैं बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, हम कहते हैं एआई में ट्रेनिंग देते हैं, हम ये करते हैं, बट वी नेवर टॉक अबाउट एज ए इंस्टीट्यूट कि लेट्स ट्रेन माय फैकल्टीज. और सो हम एफडीपी के नाम पे हम एक दिन का करते हैं, सेशन करते हैं, वो दैट इज लाइक बस खा लिया पी लिया एंजॉय कर लिया हो गया, दैट इज. But here in Sherwood Educational Group, we talk about faculty development program on a very serious note. So once I get into the system, I make sure कि मैं अपने coming session में I start skilling session for my teacher first, then goes to the student. And we have I would glad to say that we have signed up with few of the organization in Sherwood जो ये चीज करेंगे हमारे साथ. एंड वी ऑल्सो बिलीव इन शेरवुड दैट दो मेरा फंडा इज बिट डिफरेंट कि आई नेवर जज अ स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स. आई ऑलवेज जज अ स्टूडेंट कि वो कितना वोकल है, हाउ एक्सप्रेसिव ही इज, हाउ ओवरऑल कम्युनिकेशन कैसे है, राइट? बिकॉज somebody is scoring good percentage doesn't mean that he's open up with a lots of career path. But if somebody is confident, if he is vocal, if he is able to communicate, express himself right way, he can get into a lots of career path or lots of job roles. So हमारा ये है कि we try to give them experiential learning over here. So in fact जैसे हमारा स्कूल है शेरवुड एकेडमी, इन एवरी मीटिंग आई टॉक टू माई टीचर, आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हो उसको कोशिश करो दिखा के पढ़ो. बिकॉज हम क्या करते हैं, हम पहले तो हम बता देते हैं, देन व्हेन वी गेट इनटू अ क्वेश्चनियर हम तब से बोर्ड पे बताते हैं दिस इज द फॉर्मूला एंड नाउ यू हैव टू गो. बट मुझे ऐसा लगता है, इट्स माय पर्सनल, जब मैं अपने आप को स्टूडेंट टाइम में करता हूँ कि व्हेन आई वाज, अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आया, बट व्हेन आई ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम देन आई गेट पजल्ड अप. बिकॉज़ विजुअलाइज नहीं कर पाते हो. आई कांट विजुअलाइज बिकॉज़ वो शायद वो टाइम ऐसा नहीं था जब आई कैन विजुअलाइज, और मेरी वैसी थी नहीं. So, but now I think if it is for me, then majority of people should be in the same situation. Right. So I always put my teachers or faculty, let's make a experiential learning. बहुत important point है सर. इनफैक्ट आपको बताना चाहेंगे, लखनऊ में एक बहुत रेप्यूटेड स्कूल चेन है
जो सेम एथॉस को फॉलो करते हैं। जब हमने उनसे काउंसलिंग और अफोर्डेबल ओवरसीज एजुकेशन की बात करी, तो उनका भी थॉट प्रोसेस यही था कि बच्चों को या पेरेंट्स को बताने से पहले जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है व्हिच इज़ द टीचर्स, आप उनको पहले बताओ, उनको Okay. ट्रेन करो, उनको बताओ कि क्यों एक प्लान बी बहुत ज़रूरी है। अच्छा। आपको ध्यान होगा सर, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप फाइनल 50 ओवर मैच या अहमदाबाद में, वी वर ऑल एक्साइटेड एंड वी ऑल वर श्योर कि इंडिया ही जीतेगा। बट समहाउ वो दिन हमारा नहीं था सर। बट क्या है कि हमारे बच्चे भी आजकल एक प्लान बी की तरफ काम नहीं कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो माई मेंटोर बड़ा अच्छा उस तरफ काम कर रहा है सर। तो इसी एथिक्स को फॉलो करते हुए उस स्कूल ने कहा कि आप पहले टीचर्स को बताओ। तो आई थिंक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आता है जब टीचर्स भी उस होल थॉट प्रोसेस का पार्ट बन जाते हैं। सर, आपने स्कूल की बात करी, आपने जी। बोला कि जो आप स्कूल में एजुकेशन आप जिस तरीके से अपना विज़न वहाँ पे ला रहे हैं। बट सर ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनसे हम बात कर पाते हैं, जो स्कूल के बच्चों को, स्कूल के टीचर्स को, कॉलेज के बच्चों को और कॉलेज के टीचर्स को एक साथ देख रहा है और एक या साथ उस ग्रुप को लीड कर रहा है। करेक्ट। क्या चैलेंजेस है सर और आपका विज़न क्या है कि आजकल बच्चों में कैसे उनको एलिमेंट्री और बेसिक स्कूलिंग से जब उनको हायर एजुकेशन में ला रहे हैं, तो आपको क्या लगता है आगे आपके क्या व्यूज़ हैं और क्या ज़रूरत है सर फॉर द सोसाइटी एज़ सच? सो अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक टू माय चेयरमैन सर बिकॉज़ उनका ये विज़न था व्हेन ही स्टार्टेड दिस या society is under UA Srivastava Society. He said कि we are not running the school and college for the profit. हुँ, It should be a actual learning हुँ, platform जहाँ बच्चा सीख सके। हुँ, सो इट्स वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे पास स्कूल भी है, मेरे पास कॉलेज भी है, मेरे पास कॉलेज इन प्रोफेशनल मैनेजमेंट में है, मेरे पास कॉलेज फार्मेसी में है, नर्सिंग में है। सो इन फैक्ट इन नेक्स्ट ईयर वी विल बी रनिंग अ कैंपेन जहाँ पर हम कह सकते हैं केजी टू ना पीजी टू कॉर्पोरेट, ओह इन केजी टू कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेट, यस, राइट? यस, यस। सो यस देयर इज अ चैलेंज बिकॉज़ जब हम स्कूल की बात करते हैं, स्कूल हुँ, की एक थिंकिंग अलग होती है हुँ, बिकॉज़ दे मोर फोकस इनटू एलिमेंटरी टाइप ऑफ एजुकेशन, दैट्स ट्रू। राइट? जबकि दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हुँ, जब हम कॉलेज की बात करते हैं, जो बच्चा 12th में साइंस ले रहा है, देन ही गेट डिस्ट्रीब्यूटेड। हुँ, He might get into a हुँ, medical, he might get into a B.Tech, यस, he might get into BCA। हुँ, तो वहाँ पर आप स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी या स्पेसिफिक निश लर्निंग की बात करते हो। हुँ, तो हाँ, द इम्पोर्टेंट इज़ कि इफ यू आर वेरी क्लियर विथ योर बेसिक्स इन हुँ, योर स्कूल, इट विल वेरी ईज़ी टू गेट into हुँ, a राइट स्ट्रीम right stream एंड of राइट education, कॉलेज या right college, या right? Now, when you talk about a college to corporate, हुँ, it's very important that people should get a so it's my feeling that college is not where you chase फर्स्ट कोर्स, हुँ। दैट इज हो सकता है बहुत लोग नाराज हो ये चीज सुन के, राइट? बट माय फिलॉसफी, कॉलेज इज अ प्लेग्राउंड वेयर यू यस, शुड लर्न, यस, यू एक्सपीरियंस अ थिंग बिकॉज यस। यहाँ आप जितना एक्सपीरियंस करोगे, यहाँ हुँ, जितने आप फेल होगे हुँ। एंड गेट सक्सेस, यू विल वर्क बेटर इन द करेक्ट, कॉर्पोरेट, दैट्स वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। राइट? एंड दैट्स हाउ यू मिटिगेट द गैप बिटवीन हुँ, अ हायर एजुकेशन एंड अ कॉर्पोरेट, हुँ, राइट? सो और जैसे थ्री इडियट में बोला है कि आप पैसे के पीछे मत भागिए, हुँ, इफ यू डू बेटर पैसे विल चेज यू द हुँ, सेम वे, इफ यू एक्सपीरियंस, इफ यू लर्न बेटर हुँ। नंबर, यू विल ऑटोमेटिकली यू विल गेट द नंबर्स। So do you want all the Sherwood class 12 students to take admission in your in your college of professional studies? व्हाई नॉट, Hmm. व्हाई नॉट? Hmm. इन फैक्ट वी आर डूइंग दिस Hmm. फ्रॉम लास्ट 3 years, वी आर डूइंग दिस ओनली। Okay. कौन नहीं चाहेगा? No, but like जो जो कोर्सेज आप रन कर रहे हैं हम्म, और जिस तरीके से अब आप इस ग्रुप को कर रहे हम्म, हैं और आई एम श्योर आपसे पहले भी काम हुआ है। आपको क्या लगता है कि शेरवुड आज ऐसा क्या डिफरेंशिएटर है हम्म। एज़ कम्पेयर टू जो और कॉलेजेस नहीं उस तरीके से कर रहे हैं? देखिए, मैं कंपेयर नहीं करना चाहूँगा हुँ, फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं चाहूँ बिकॉज़ एवरी कॉलेज जिसे कहते हैं ना, पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती हैं, एवरी हुँ, उँगली जैसे वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो हुँ, अगर आप इफ यू टॉक अबाउट इन लखनऊ, देयर इज़ अ 100 ऑफ कॉलेज एंड दे आर करेक्ट, डूइंग देयर बेस्ट। यस, But what different we are doing यस, as यस, a Sherwood educational group, यस, that now we are more focusing on the हुँ, experiential learning, as I said. ओके, We are more focused on the skill based learning. हुँ, अब जैसे we have a BBA, हुँ, but thanks to our partner companies, we हुँ, are now aligning the BBA with हुँ, AI, हुँ, so that
क्योंकि अगर आप देखें आज के डेट में, इफ यू टॉक अबाउट बीबीए, बीकॉम और बीसीए, दीज आर द वेरी vanilla skills. Hmm. But if a student doing BBA with AI or BCA with cyber technology, it Hmm. will be a niche skill then. Hmm. And उसके लिए going forward, doors are like the thousand door will open up. Yeah. So you can move into. So हम सिर्फ vanilla skills में हम focus नहीं कर रहे, हम add on क्या कर सकते हैं, कैसे हम उनको better skill कर सकते हैं, हम उस Hmm. पर focus कर रहे हैं. Along with that, we are also focusing on the personality, Hmm. right? So यहाँ पर बहुत सारे बोल रहे हैं personality तो हम भी करते हैं, PDP हम भी करते हैं, but Hmm. here the difference is we try to make them Hmm. more aligned to the corporate. Hmm. So in fact, me and my few of my colleague over here, we are Hmm. taking the initiative Hmm. कि जो जैसे मैं पहले बताया था, आई एम Hmm. कमिंग फॉर कॉर्पोरेट, आई नो हाउ कॉर्पोरेट वर्क, तो मैं Hmm. अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करता हूँ. आई Hmm. पर्सनली टेक सम क्लासेस विद देम Okay. टू मेक देम अंडरस्टैंड कैसे Hmm. काम होता है. Hmm. फ्यू ऑफ माय कलीग्स, तो Hmm. हम जितना हो सकता है वी आर ट्राइंग टू गिव देम एक्सपोजर ओवर हियर, Hmm. राइट, कि बाहर की दुनिया कैसी है. Hmm. एंड हाँ, जनरली ये सब सभी कर रहे हैं, बट Hmm. वी ट्राई टू मेक अ बिट डिफरेंट ओवर हियर. Yes. In fact, we are not chasing with the numbers, we Hmm. are chasing the quality of the student. Hmm. Because मैं अगर एक set of qualities of student I Yeah. can make them, Hmm. then probably in future they'll make India better. सर एक पॉइंट जो आपने नहीं बोला और जो आपके लिए बहुत फेमस है, Hmm. जो आपको मैं आज बता देता हूँ सर इस Hmm. पॉडकास्ट पे, वो है आपका पर्सनल टच, जिसके लिए लोग आपकी बहुत तारीफ करते हैं सर. तो आई थिंक वो जो पर्सनल टच आप ऐड कर रहे हैं एंड बीइंग एट द टॉप मोस्ट ऑफ द पिरामिड, तो आप जैसा थॉट प्रोसेस और जैसा इंक्लूसिविटी आप लाना चाह रहे हैं, आई थिंक ये एक बहुत यूनिक प्रोपोजिशन है सर. क्योंकि जैसे आपका अभी हम बात कर रहे थे सर जी. कि आप आपका जो ऑफिस भी है वो बिल्कुल राइट इन द सेंटर ऑफ वेयर ऑल द एक्टिविटीज गोइंग ऑन. Correct. तो नॉर्मली देखा गया है कि मैनेजमेंट एक बिल्कुल अलग Hmm. बैठते हैं, वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं. तो आई थिंक जिस तरीके से सर आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो एक बहुत So I kept a open door policy. Generally यस. कॉर्पोरेट में होता है, हुँ. तो मैंने यहाँ पर रखा है कि कोई भी टीचर या कोई भी स्टूडेंट, दे जस्ट नॉक माय डोर एंड जस्ट गेट इनटू, मतलब आपको वेट नहीं करना अनलेस हाँ. अनटिल कोई मीटिंग ना हो. यस. हाँ, द पीपल आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, सॉरी टू से, बट उनको वेट करना पड़ सकता है बिकॉज़ माय प्रायोरिटी इज मोर द स्टूडेंट देन, एब्सोल्युटली. राइट. यस. उसके बाद हमने एक फीडबैक सिस्टम हमने तैयार किया है. वी हैव अ क्यूआर कोड. हुँ. अगर आप गैलरी में कहीं जाएँगे तो यू विल फाइंड अ क्यूआर कोड व्हिच इज़ अ immediate help within a 24 hours. हुँ, हुँ. So you just need to scan that QR code, you just put your complaint, whatever हुँ. happened, ओके. और वो 24 आवर ट्रैक होता है. वॉव! ठीक है, हम कोशिश करते हैं विदिन 7 टू 8 आवर्स उसको सॉल्व करें, वेरी नाइस. एंड दैट इज डायरेक्टली अंडर माय परव्यू. सो वॉव! मेरे पास कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मेरे हाँ. पास डायरेक्ट आता है, तो राइट. मैं डायरेक्ट करके विल ट्राई टू गेट इट डन इन 24 आवर्स. हाँ, बिकॉज़ एप्रिसिएशन 2 दिन बाद पता चल जाए हाँ, चलेगा, बट प्रॉब्लम तुरंत प्रॉब्लम पता तुरंत. चले. यस. एंड दीज आर द किड्स, दे यस. कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड, अलग अलग जगह से आ रहे हैं, यस. घर छोड़ के आ रहे हैं. यस. अगर हम उनके साथ नहीं देंगे तो देन कौन देगा. ट्रू सर. सर आपका जो स्टूडेंट इंटरेक्शन है हम्म. या जो बच्चे अपना कोई बात करना चाहें, क्या कभी ऐसा हुआ है कि एनी स्टूडेंट हैज़ ओपन्ड देयर हार्ट इन फ्रंट ऑफ यू एंड हैव दे स्पोकन अबाउट एनी काइंड ऑफ अ फेलियर और एनी काइंड ऑफ challenges that they've faced? लॉट्स ऑफ स्टूडेंट, Okay. मतलब एज आई सेड एंड यू आल्सो सेड कि मुझे अच्छा लगता है, मतलब कमिंग फ्रॉम कॉर्पोरेट, मुझे शायद आफ्टर दिस पॉडकास्ट लॉट्स ऑफ पीपल से कि यार ये कैसी बात कर रहे हैं, बट रादर सिटिंग विद द पीपल डूइंग अ मीटिंग होल डे, मुझे बच्चों के बीच में बैठना ज्यादा अच्छा लगता है, Mm, बिकॉज आई ऑल्सो लर्न लॉट्स ऑफ थिंग फ्रॉम. yes. एंड ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन, यस, दे आल्सो ओपन अप कि Mm, सर ऐसा नहीं हो रहा, mm, सर कैसे कर रहे हैं, हमारे स्कोर्स नहीं हम mm. डेवलप कर पा रहे हैं, हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं. तो क्या challenges हैं सर? मतलब बच्चे एक 80% चैलेंजेस जैसे जो टिपिकल परेटोज रूल है सर हम्म. कि 20% प्रॉब्लम्स का 80% कॉज होता है एंड Correct. वाइस वर्सा. तो आमतौर पे आपके बच्चे आपको क्या लगता है आजकल के बच्चे जो हैं हम्म. वो किन चैलेंजेस से गुजर रहे हैं? अब मुझे जो लगता है दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, आई थिंक, एंड आई ऑल्सो फील द सेम थिंग फॉर माई किड एज वेल, सो दैट इज फोकस. हम्म. एंड थैंक्स टू ओवरलोडेड ऑफ इंफॉर्मेशन, इंटरनेट, शॉर्ट्स, आपका फोकस एंड कंसंट्रेशन लेवल गेटिंग डाउन यस. डे बाय डे, यस. राइट. सो मुझे ऐसा लगता है कि our focus is losing, my student are losing their focus, they are not able to concentrate, जिसके वजह से आपकी 80% प्रॉब्लम्स हो रही हैं. बिकॉज जब आप कोई चीज कंसंट्रेट नहीं करोगे, आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे. सो आई ऑलवेज इंसिस्ट माय स्टूडेंट कि आप पढ़ो, रीड अ लॉट, बिकॉज आप
आज के डेट में यस, इंफॉर्मेशन है, बट अगर आप उसको ढंग से इफ यू कांट आर्टिकुलेट और परसीव इन योर ब्रेन, तो आप उसका रिजल्ट सही नहीं लिखा होगा, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। सो रीड अ लॉट, जितना आप पढ़ सकते हो। इट्स नॉट अबाउट कि आपने यूट्यूब में वीडियो देख लिया, सुन हाँ, लिया, हाँ। प्रॉब्लम खत्म। नहीं, इट्स नॉट अबाउट दैट, हुँ, बिकॉज बहुत सारी चीजें वीडियोस में नहीं अवेलेबल होती हैं। हुँ, फॉर हुँ, दैट यू नीड टू रीड। सो रीड न्यूज़पेपर डेली, हुँ, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, हुँ, हिंदुस्तान टाइम्स, एनी न्यूज़पेपर, जस्ट रीड हुँ। as much as you can. यस सर। सर जब हम एक प्रोग्रेशन की बात करते हैं, हर बच्चा कॉलेज में एक सपना लेके आता है कि मैं ये कोर्स कर रहा हूँ और मोस्ट ऑफ द पीपल नॉर्मली टॉक अबाउट कि यहाँ से मेरे को अब क्या जॉब लगेगी, क्योंकि शायद कॉलेज में लाइफ थोड़ा सीरियस होना शुरू हो जाती हुँ, है। बच्चे सोचते हैं कि अब मैं एक्चुअल दुनिया में जा रहा हूँ। हुँ। सर क्या आपके पास कभी इस तरीके का क्वेरीज़ रही हैं कि अगर इंडिया में ऑप्शंस नहीं हैं, तो क्या हम इंडिया के बराबर जैसी कॉस्ट में बाहर कुछ कर सकते हैं? या इंडिया में अगर हमको इस कोर्स के बाद प्रोसीड करना है, तो अगर हमें जॉब नहीं मिल पा रही है, तो हम स्किल एनहांसमेंट के लिए हुँ, जो एक आइडिया ऑफ वसुधैव कुटुंबकम है, हुँ, हुँ, कि हम पूरी दुनिया को हुँ, एक ही मान लें, हुँ। तो क्या उस तरफ कुछ आपने काम किया है या बच्चे सोचते हैं शेरवुड ग्रुप के सर? आई थिंक अगर ये शायद इफ यू आस्क मी 5 इयर्स और 10 इयर्स बैक, तो बोले ऐसे कि नहीं, हमें बच्चों को बाहर भेजना चाहिए, लेट देम मेक ग्लोबल, राइट? द स्टेटमेंट मेक देम ग्लोबल इज स्टिल स्टैंड हियर, हुँ, बट मुझे ऐसा लगता है इन इंडिया नाउ वी हैव एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। हुँ। एंड बीइंग अ कॉर्पोरेट, गाय कमिंग फ्रॉम कॉर्पोरेट, मैंने भी बहुत सारे कंट्री विजिट यस, किए हैं। यस। आई वर्क ओवर देयर, आई वर्क इन देयर एजुकेशन सिस्टम, बट समहाउ मुझे लगता है कि यस, देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच वी नीड टू लर्न। हुँ। इंडिया में एजुकेशन को तो वैसे भी कोई नहीं वो बीट कर सकता, हुँ, हुँ, राइट? बट हुँ, यस, स्टिल देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच वी नीड टू लर्न, जैसे हुँ। व्हेन यू टॉक अबाउट एक्सपीरियंशियल Yeah, लर्निंग, yeah, ओपन अप कम्युनिकेशन, yeah, दैट वी नीड टू लर्न। बट यस, अभी इंडिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज yeah, हैं, yeah. राइट? वेयर इफ यू हैव अ गुड स्किल, राइट स्किल, you can get हुँ। jobs. लेकिन सर अगर कोई बच्चा मान लीजिए बीबीए करा हुआ है Hmm, और लेट्स से उसके पास क्लास 12th में मैथ्स नहीं थी, hmm, तो आई एम श्योर उसका मैथ्स उसका पैशन नहीं है। hmm, उसने बीबीए तो किया सर, अब उसको hmm, एक अच्छे एमबीए के लिए इंडिया में कैट, ज़ैट hmm, या कोई अच्छा इस तरीके का एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करना hmm, पड़ेगा, hmm, जिसमें सर इंग्लिश का आधा पोर्शन और आधा मैथ्स का है। तो सर जब उसका मैथ्स ही स्ट्रॉन्ग पोर्शन नहीं है, hmm, तो इंडिया में वो किसी टॉप मैनेजमेंट कॉलेज के लिए कैसे कॉम्पीट करेगा? तो क्या ऐसे बच्चों को जो बहुत स्ट्रॉन्ग मैथ्स के लिए एक लव नहीं रखते हैं, hmm, तो क्या अच्छा नहीं रहेगा कि हम उनको ये बताएँ कि आप एक 1 ईयर का या 2 ईयर का एक कोर्स hmm, मैनेजमेंट का कर सकते हो, hmm, इवन विदाउट योर स्ट्रॉन्ग मैथ्स बैकग्राउंड, hmm, इफ नॉट हियर इन इंडिया, एट अ सिमिलर कॉस्ट आउट ऑफ hmm. इंडिया? देखिए, यस, यू एब्सोल्युटली राइट, बट इफ यू लुक इन इंडिया, इंडिया में बहुत सारे ऑप्शन खुल गए हैं, राइट? सो आज के डेट में इट्स नॉट इम्पोर्टेंट दैट यू शुड हैव मैथ्स, बट हाँ, मैथ्स का होना जरूरी, बिकॉज इट्स ओपन अप योर एनालिटिकल स्किल्स, हुँ, राइट? मैथ्स आपको इसलिए सिखाता है ताकि आप एनालिटिकल स्किल्स कर सको, हुँ, आप चीजों को, डेटा को समझ सको, हुँ, राइट? हुँ, अब आप बताइए अनुज जी, इफ somebody is doing BBA, तो येस, BBA का जॉब प्रोग्रेशन क्या होगा? हुँ, He is definitely going for a marketing job और सेल्स जॉब और डेटा ऑपरेशन जॉब। हुँ, आप तीनों ही जॉब देखो जहाँ पर वो ही इज टॉकिंग अबाउट डेटा। हुँ, मार्केटिंग इज आल्सो डेटा एनालिटिक्स एट द एंड ऑफ द एनालिटिक्स। डे, येस, सेल्स इज आल्सो डेटा कि आप कहाँ पर पिच करोगे, कितना, कितने प्राइस पॉइंट पर आप बेचोगे। करेक्ट, ऑपरेशन इज आल्सो डेटा। सो that's why for BBA or any student, that maths is bit important, because हुँ, analytical skill, अगर data is all about numbers, is हुँ, zero and one, if you हुँ, don't understand the zero and one, तो फिर हुँ। कुछ नहीं कर हाँ, सकते। बट बेसिकली हाँ, कमांड ओवर योर नंबर्स the इज़ वेरी basic इम्पोर्टेंट। thing, basic funda has to be there। हाँ, बट अगर जैसे आपका मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, एंड एज यू करेक्टली सेड कि हम बाहर जाके 1 साल का, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हुँ, इंडिया में देयर आर लॉट्स ऑफ हुँ, colleges, हुँ, organizations who are providing हुँ, 1 year, 6 months of program, हुँ, right? In fact, let's say if a BBA, एक ये भी option है कि BBA student can go for a 1 year, 2 years of job, हुँ, then they can get a what we call it a executive programs हुँ, from college like XLRI, हुँ, right? From you have done. So ऐसे बहुत सारे options हैं इंडिया हुँ, में, हुँ। बहुत options हैं, बहुत colleges हैं जो ये चीजें करवाती हैं। ओके। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो अपना एजुकेशन बाहर प्लान कर सकते हैं सर, जो जिनके वो एस्पिरेशंस हैं, तो अगर वो समय रहते आएँ और समय रहते प्लान करें,
ऐसा कुछ आपने सोचा है या आपका व्यू इस बारे में क्या है सर? Yeah. I think this is the right time, and thanks to our current government, अभी ample of opportunities हैं, right? ऐसा नहीं है इंडिया में ऑप्शन नहीं, इंडिया में ऑप्शन है, but there are lots of organization like you. I must thank to you, my mentor, जो ये सारी चीजें help करता है. In fact, I think you also help to get accreditation. And कोई भी स्टूडेंट है जिसको लगता है कि आज के टाइम अपॉर्चुनिटी एंड दे वांट टू गेट इन ग्लोबल, right? So they should get. There's a lots of opportunity. They can do 6 months or 1 year of program, Yes. get accredited, and they can also get a global exposure, Correct. right? And I believe, I think I'm saying, just give नहीं, me a right. एब्सोल्युटली सर। इनफैक्ट आपने जो बात बोली, हम बात करते हैं कि आप अगर प्रिपरेशन प्लानिंग अगर आपकी अच्छी है, और तीसरा पी हम बोलते हैं प्रोफाइल। Profile. ये 3 Absolutely. पीज़ अगर आपके पास हैं, तो आप बहुत कम कॉस्ट में बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ के बड़ा अच्छा अपने लिए कर सकते हैं। तो इनफैक्ट मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ सर, कि कई बार ऐसा होता है कि प्रोफ़ेशनल कॉलेजेस में जो बच्चे एमबीए कर लेते हैं, तो उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि वो अपनी जॉब जो करते हैं उसके बाद, उनको बहुत सैटिस्फैक्शन नहीं आता है साल 2 साल Absolutely. करने के बाद। तो वी हेल्प देम टू गेट अ लॉट ऑफ 1 ईयर कोर्सेज़ एज़ यू सेड, जिसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। और द आइडिया एंड द क्रक्स, द सक्सेस मंत्रा इज़ ट्रिपल सी, द राइट कंट्री, द राइट कॉलेज एंड द राइट कोर्स। Absolutely. अगर ये 3 सी अगर आपने सही तरीके से अलाइन नहीं किए हैं, Absolutely. तो Absolutely. दिक्कत आ जाएगी सर। I met lots of students यस। when मैं जब दुबई जाता था जी, या कहीं मैं श्रीलंका जैसे जाता था, जी, जी, yeah, I met lots of Indian students. I think like company like you, जी, thanks to all this company, जी। जिन्होंने वो अपॉर्चुनिटी दी उन यस, स्टूडेंट्स को who यस, can explore the global thing and यस। truly सीखने के बाद they get into a country and help us to grow like that. सर, कोई ऐसा स्टूडेंट जो आपको ध्यान हो, जिसका पाथ आपने थोड़ा-सा हेल्प करी हो और आज वो अच्छा कर रहा हो, कोई स्टोरी हो तो शेयर करिए सर। It's not from this organization, हाँ, हाँ। but from past. यस। So he used to be stay nearby. मैं घर के पास रहता था. Somehow इश्यू वही था जैसे जनरली होता है कि मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, बीइंग मैं जी, पढ़ रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, बट जी, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे। देन हम लोग नियरली रोज मिलते थे शाम को, क्योंकि घर के पास रहता था, मैं बाहर जाता था। जी। वी एवरीडे वी बी इन अ गुड चिट चैट एंड वॉक। हुँ, तो हुँ, देन मैंने कहा कि ठीक है, मार्क्स नहीं आ रहे, दैट्स फाइन। हुँ, व्हाट एक्स्ट्रा यू कैन डू? हुँ, इज इट दैट यू आर गुड विद डिबेट्स? हुँ, आर यू गुड विद योर कोडिंग? हुँ। फॉर्चुनेटली वो कंप्यूटर साइंस का ही था। ओके। So, are you good with the website development? Are हुँ, you good with the DBMS? या Right. So, हमने क्या किया? We set for a week and हुँ, we create a matrix हुँ, कि अच्छा, कि कौन सी चीज में आपका इंटरेस्ट है, हुँ, पैशन, हुँ। एंड किस सब्जेक्ट में यू आर गुड, गुड, राइट? हाँ। Nowadays, people who are good with score, they're also good with their passion, and they're creating lots of things like you, हुँ। right? I believe you're following up your passion, right? Though you're engineer, यस, right? So हमने वो डिफाइन किया कि उसका पैशन क्या है, इनका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट किसमें है। यस, यस। इट्स अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स। कनेक्टिंग द डॉट बेसिकली, जैसे हम पहले आपको उस प्रॉब्लम को एक पेपर में लेके आना है, या, यू नीड टू पुट दैट प्रॉब्लम इन द पेपर एंड देन यू स्टार्ट सॉल्विंग। यस। धीरे 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 वी डिस्कस हुँ, डिस्कस एंड देन वी गेट टू नो कि यस, you have a passion in singing, हुँ, right? But he also loves in DBMS, हुँ, right? So धीरे धीरे what he have done, he now a हुँ, हुँ, DBMS engineer in a very good company. I हुँ, don't want to take the name. हुँ, हुँ। Parallel, he is a good singer as well. वाओ! And अभी जैसे कुछ दिन पहले मेरी बात हुई हुँ, थी कि now he getting to full time as a singing as a guitarist, right? ओके, हुँ, So now he start follow. So यहाँ पर मैं क्या, it's not about the marks what he got, यस, but how good person, यस, right? आज के डेट में you have to be a good human being हुँ। rather getting a good score, right? Well, to substantiate to what you said, sir, and to cut down the effort that you took in that case, I would like to tell you that हम एक psychometric test करते हैं, Excellent. and this psychometric is perhaps the best today available on our mother earth. So we have its license from the UK, and हम करीब 1500 बच्चों का कर चुके हैं ऑलरेडी सर। और टचवुड नोबडी हैज़ कम बैक एंड सेड कि ये मुझे नहीं करना था। सो people come from PCM and varied backgrounds like me, Hmm. who is a PCM student, Hmm. did engineering, but
करियर के कई साल बाद पता लगा कि नहीं नहीं आप ह्यूमैनिटीज के लिए बने हो, तो अगर मुझे कोई 20 साल पहले बताता तो आई वुड हैव चोजन ह्यूमैनिटीज नॉट इंजीनियरिंग। एब्सोल्युटली। सो अब ये टूल्स इतने अच्छे हैं सर, इतने इम्पैक्टफुल हैं कि एक 150 मिनट के टेस्ट के बाद आपको बिल्कुल क्लियर कर देता है कि आपको क्या करना चाहिए लाइफ में। तो कब कर सकते हैं? आई होप आप मत करिए सर, आप यू आर डूइंग वंडरफुल No, जॉब। no, I'm just talking about my students. They need यस, such type of help, right? यस, Like organizations like you. यस, नहीं नहीं बहुत इम्पैक्टफुल है सर, हम कई स्कूल्स में करते हैं जी। एंड हमारे पास वैसे भी स्टूडेंट्स आते हुँ, हैं एंड इट इज़ रियली रियली हेल्पफुल दैट वे। सर करियर की बात कर रहे हैं, कोर्सेज की बात हुँ। कर रहे हैं, कुछ मिथ आपको लगता है ऐसे हैं जो हाँ, बच्चों के एब्सोल्युटली, दिमाग में एब्सोल्युटली, हैं? एब्सोल्युटली। आई थिंक हम सब उस मिथ से आए हैं अभी तक, अभी भी उसी मिथ में जीते हैं। दो वी से एज़ दैट वी आर अ हुँ, 21st century people, बट हाँ, स्टिल वी आर बिलीव दैट मिथ। यस, द यस। फर्स्ट मिथ कि हमारा बच्चा या तो इंजीनियर होगा या डॉक्टर होगा। दैट इज़ फर्स्ट मिथ। या एक और है सर, उसमें एक मीम था कि बेटा पहले इंजीनियरिंग कर लो फिर डिसाइड करेंगे क्या हाँ, करना क्या है। करना है, राइट। देन सेकंड मिथ, इफ यू हैव अ गुड स्कोर देन हुँ, ओनली यू विल गेट अ जॉब, यस, जो कि आज के डेट में इट्स नॉट। यस, ट्रू, Right. नॉट ट्रू And एट in ऑल। fact, if you look into the big company like Facebook or या Twitter, दे आर just look हायरिंग फॉर into the स्किल्स, या ओनली फॉर they're talking स्किल्स। about skills, या right? So I think these are the myth. And हुँ, third myth, हुँ, जो दो हम realize करते नहीं करते हैं, हुँ, but somehow it get into our brains and our genes, या कि एक अच्छी नौकरी कर लो बस यही तुम्हारा रिटायरमेंट सॉल्यूशन है। हाँ, That every parent thought like that. In fact, जब हुँ, मैं पुरानी कंपनी में, पेरेंट्स को लगता था इसी कंपनी से रिटायर होकर निकलेगा यस, and you will settle down. हुँ, But I think that is not ट्रू, true. यस। सर अगर ऑप्शन होता 20 साल अगर टाइम को रिवाइज़ कर Hmm. पाते, तो आप फिर से कॉर्पोरेट जाके फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आएँगे? या आप 20 साल पहले अगर ऑप्शन होता, तो आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जॉइन करके ही आगे प्रोग्रेशन करना चाहेंगे? अगर मेरे पास ऑप्शन होता देन प्रोबब्ली आई बिल्ड अ ऑर्गेनाइजेशन, बिल्ड अ एजुकेशन सिस्टम फ्रॉम स्क्रैच, ओके। व्हिच नॉट विथिन द बाउंड्री, वी हुँ, ऑलवेज टॉक आउट ऑफ द बाउंड्री। हुँ, हुँ, मतलब हुँ, मेरा एक्चुअली मेरी वाइफ का भी ड्रीम है जी, कि वी बिल्ड सच टाइप ऑफ एजुकेशन सिस्टम जो हुँ, बाउंड्री में ना हो, राइट, हैज टू बी अ बाउंड्रीलेस, राइट, राइट। एंड आई थिंक इफ यू लुक इनटू आफ्टर कोविड, हुँ, एवरीथिंग गॉन बियॉन्ड बाउंड्रीज, हुँ, 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 राइट। ऑफिस भी घर पे बैठ के हो रहा है, कनेक्टिंग पीपल हु आर या, सिटिंग ऑस्ट्रेलिया घर पे बैठ के, तो या। let's start the education of boundaryless as well. In fact, even people talk about modern education and कई सारे बोर्ड्स हैं ऐसे सर, जैसे एक आईबी बोर्ड Hmm. है, Hmm. कैम्ब्रिज बोर्ड है, जिनके कुछ स्कूल्स इंडिया में भी हैं Hmm. where there is no textbook concept. So Absolutely. they have a very open learning kind of Hmm. philosophy where students come with their laptops Hmm. and mobiles and it's about your original thinking, Hmm. original work that you Hmm. can provide. Hmm. So उस तरफ तो काफी काम इंडिया में। Correct. बट somehow I still feel कि जैसे अभी जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन are coming up and say कि so why not you have a digital classroom or Yeah. digital board, but probably शायद it's my thinking process, I thought कि यार घर पे जाके तो they are already using Hmm. technology, let them Gadgets and all. restrict some time, Yes. put them out of the screen, Yes. जो traditional way of learning, because we need to balance the traditional and modern learning. Yes. It's not only about the modern learning, Hmm. right? Yes, modern learning having their own benefit and traditional learning has their own benefit. So Yes. let's balance both the thing Yes. and make a good human being. ट्रू, ट्रू, वेरी ट्रू सर। सर थोड़ा-सा अब थोड़ा-सा माहौल को लाइट करते हैं Please. एंड Please. हम चाहते हैं कि थोड़ा-सा अपनी टिकलिश बोन्स को थोड़ा Um, मूव करें सर एंड एक रैपिड फायर का सेक्शन है oh, एंड आपसे चाहेंगे कि जैसे आपने अभी तक ऑनेस्टली आंसर किया है, प्लीज़ इसमें भी करें सर। sure. सो आई हैव अ फ्यू क्वेश्चन्स दैट आई विल आस्क यू सर। Um, द फर्स्ट वन दैट आई हैव इज़ a leader that you admire hmm. and why? We talk about my leader is my father. He always go on a one pace. मतलब Hmm. सच्चाई जो है, it doesn't mean what will the result. Yeah. He always take people on his side. Yeah. He's not always like bossy thing. Yeah. He's a leader. He go with the flow Yeah. basically. ओके। एक बचपन की डाँट जो अभी तक याद हो? ओह! बहुत सारी है, ओके। बहुत सारी है। So, बिल्कुल याद है, मतलब जी। मैं बेसिकली छुपन-छुपाई, हाइड एंड या, सीक गेम, यस। तो मैं कहीं छुप गया था एंड हुँ, मैं वो बैठा कुछ और सोच रहा था, पूरा घर मुझे ढूँढने बाहर निकल गया था एंड यस। आई हैवंट रियलाइज्ड कितना टाइम हो गया। हाँ। तो जब मैं पकड़ा गया तो फिर यू कैन नाउ अंडरस्टैंड कि क्या हो सकता है। दैट टाइम वी डोंट हैव रिस्ट्रिक्शन कि नहीं, मारना नहीं है, कुछ नहीं करना है। यस, यस, तब यस। तो हम दे आर फ्री टू यूज़ यस, एनीथिंग।
वही सर कहीं पढ़ा था कि एक माँ ने अपने बच्चे से कहा कि अगर अगर चोट खा के आए तो देखना बहुत मारूंगी। हाँ, तो वही वाली बात हो गई एक्सीलेंट। सर। चोट बाद में पूछते पहले रहता है, गए क्यों गए तुम? कहाँ थे? सर, one word that हुँ, you think will describe the Sherwood Education Society. एक्सपीरियंशियल लर्निंग। Okay. Sir, sports या performing arts, which is your go for thing? Both the thing, Hmm. sports make you active, Hmm. performing arts make you more creative. One is good for your brain, one is good for your health. Hmm. What do you think motivates students more today? Is it rewards or recognition? Both are important. Mhm. It has to be a balance between reward and Which was your favorite subject in school? oh, computers. Has to be. एक स्किल जो आपको लगता है कि आज क्लासरूम सिखा ही नहीं सकते और बहुत ज़रूरी है? Discipline, Okay. If not education, which career would you choose and why? travel. I love traveling. Okay. Success or happiness? Happiness, which make me success. एब्सोल्युटली। जो मैं आपको साइकोमेट्री की हाँ, बात कर रहा था सर, द आइडिया ऑफ दैट इनफैक्ट जो यूके से जो उनका एक हुँ, लिटरेचर आता है, इट सेज दैट इन ऑर्डर टू बी हैप्पी एंड सक्सेसफुल हुँ। यू टेक दिस टेस्ट। सो वेरी 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 वेल सेड सर। कंप्लीट दिस सेंटेंस सर। एवरी चाइल्ड डिजर्व्स। Good health, ओके। आईटी और बुक्स? IT. IT, through which I can create more books. Okay. One innovation that you think education lacks and should be essential. A tough question because education is talk only about innovation, right? Yes. So it's a very tough question, but I think there are lots of space where Hmm. education can innovate. Hmm. I think from day zero we should make student more into the education where they can experience starting from A, B, C, D to whatever they think. So parents or teachers, who are better uh, in terms of honing a child? Oh, very tough question, right? सर आप इतने सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर्स बच्चों को दे रहे हैं बना बना के, आज आप सर आप हमारे हाथ आए हैं सर, तो हम कैसे छोड़ दें नहीं, नहीं, बिल्कुल देखिए आप? I think it's like a teamwork, Yes, right? yes, It can't I be a agree. parents or teacher Yes, because initial 3 year, 4 year that is the parents only, yes, and after school also there is parents only, yes, right? So it's a teamwork where yes. we both work as a team and make a good human being. मैं इसलिए बार-बार कह रहा हूँ Hmm, as a human I hmm. never want a very good guy on ये I need a good human being Yes, who can yes. understand the human better. Yes, yes. Sir, with this we close the rapid fire and also come to the close of today's episode. Thank you. But before I have your closing statement, I would like to thank the audiences for being so patient in listening to the views of the honorable executive director of the Sherwood Educational Society of Lucknow. Sir told us various things, but जो एक क्रक्स जो मुझे समझ में आया है वो ये है कि पहले एक बेहतर इंसान बनिए, और अगर आप ये करने में सक्सेसफुल हो पाए तो कुछ ना कुछ बहुत अच्छा आप अपने लिए जगह ज़रूर Absolutely. बना लेंगे। और वो अच्छा इंसान बनने के लिए schools like Sherwood, colleges like Sherwood are there to support you in your journey, not just in terms of education, but in terms of your social, emotional development, and so on and so forth. Absolutely. Sir, thank you so much Thank you, for Anujit, your for time. thank you. Thank you very आपने much. अपने व्यूज शेयर किए, आपने शेरवुड के बारे में बताया और आपने अपनी पर्सनल चीजें हमने जानी सर आज। वी कांट थैंक यू मोर फॉर It's my pleasure. It's my pleasure. Thank you very much. सर। बिफोर वी क्लोज द Mm. एपिसोड वी वुड लाइक टू हैव वन क्लोजिंग स्टेटमेंट एंड वन क्लोजिंग आर्गुमेंट फ्रॉम यू सर। I think for the student who are looking चाहे वो स्कूल के हैं कॉलेज के, तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है थ्री थिंग यू शुड बी हैव इन योर लाइफ. वन इज योर इंटीग्रिटी. डोंट mess with your integrity. Always be honest. Be innovator. Always innovate something new. Always think about innovation. And third is you should be a good communicator. You should be expressive. जो भी आपके दिल में हो, जो भी आप उसको ढंग से आर्टिकुलेट करके बता सकें. Very true, sir. To everybody else watching, I think success is not about copying others. It is Absolutely. about discovering your own path. And my mentor and the Sherwood Education Society are some platforms that help you to discover that path. Absolutely. Once again, thank you so much, Thank sir. you. Thank you. And with this, we come to the close of today's podcast with a promise that we will be back with
another series, another episode with another powerful personality. Until then, अपना ध्यान रखिए and please don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much.